सच में कांग्रेस संविधान बदलने की बात कर रही है? क्या मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर संसद में मचा बवाल राजनीति की नई जंग की ओर इशारा कर रहा है? नमस्कार, मैं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। संसद में जो हुआ वो पहले कभी खुले तौर पर नहीं कहा गया था। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ऐसा क्या कह दिया कि बीजेपी आग बबूला हो गई? क्या कांग्रेस वाकई संविधान में बदलाव करने के लिए तैयार है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने कांग्रेस को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट में बताइए, क्या संविधान से छेड़छाड़ जायज है? तो देखते हैं राज्यसभा की वो वीडियो। सर, व्हाई आई हैव टू एक मिनट सर, it is not our intention to disrupt this 0 hour. Why I am standing here is because of an extremely important and sensitive matter which has come to our notice. The members of parliament from the NDA have met me and raised this very important issue. What is the issue? Sir, one of the senior leader of the Congress party, very responsible Congress leader, who is holding a constitutional post, has made a statement that they are going to change the constitution of India to provide reservation in contract work to a Muslim community. Now, this statement, we cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the constitution of India. Reservation for It is what? extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the constitution of India, the constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. And these people, they are talking about constitution, they are carrying the photograph of Baba Saheb Ambedkar, but their people officially makes a statement to change the constitution of India. I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. How and in what manner you want to change the constitution of India to provide reservation to Muslim community? I want clear-cut reply and position from the Congress party president, who is leader of the house in the Rajya Honorable Sabha. Minister, reservation in what? Sir, my request is the Congress party president, who is the leader of the house, leader of the opposition in the Rajya Sabha, should make the position clear and tell the August House as well as to the people of India why Congress party want to change the constitution of India to provide reservation to Muslim Leader of the community. माननीय सभापति जी, Sir, what is the issue? We can raise it according to rules. The house is governed by rules. What is माननीय the issue? सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, आप बैठ जाओ, उन्होंने बिल पास कर दिया, तो वही ना हाँ, बिल पास किया वाला वो है तेलंगाना नहीं कर्नाटक। माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है,
संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा. रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है. कॉन्ट्रैक्ट में I'll authenticate. Yes. Sir, The statement of the Karnataka में Leader of the House, Yes. the statement to which reference has been made by the Honorable Parliamentary Affairs Minister that a constitutional functionary holding position in the political party Yes. has made a statement that there will be reservation in contract for Muslim community. Yes. That statement be authenticated Yes, I'll authenticate, and sir. put on the table of the House. The Karnataka During course government, of the day. I'll do that, sir. The Karnataka government has passed a bill granting 4% of reservation to minorities and in public contracts. In public contracts. ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है. डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे. दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर. और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं. ये इसके लिए हम रोज करते हैं. But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn and discussion should take place, and Congress party president and the leader of the opposition should answer this question. Leader of the opposition. धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का. मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं. देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता. रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता. और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की. ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धज्जे उड़ाने वाले लोग हैं. और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है. कोई मेरे पार्टी का भी ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है, और आपके कहने पर मैं इसको ऑथेंटिकेट भी कर सकता हूं. और ये मुस्लिम लीग का पॉलिसी 28 अगस्त 1947 में मुस्लिम लीग ने जब रिजर्वेशन पॉलिसी को संविधान सभा में लेके आए थे, तब सरदार पटेल ने रिजेक्ट किया था. आज कांग्रेस फिर मुस्लिम रिजर्वेशन का बात उठा करके बाबा साहब का संविधान का इज्जत को इन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं. हम खंडन करना चाहते हैं. आप हिम्मत है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा आज ही मांगिए. हमने ये कहा कि भारत देश का संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और इस संविधान को हमने बनाया. जैसा कि आपने देखा, सदन में कैसे पक्ष विपक्ष भड़क उठा. देखना होगा कि केंद्र सरकार कब इन मुद्दों पर एक्शन लेती है. वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद. इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए. ऐसी खबरों के लिए बने रहिए संवाद के साथ. चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. मिलते हैं अगले वीडियो में.